Good morning, sir. Very good morning to all. Very good morning. Yes, I'm audible, na? Yes, sir. Okay, good. Thank you. So, in last lab, we discussed about the 9th assignment. Am I right? Yes. We discussed about the 9th assignment. सही कह रहा हूँ? Yes, बच्चों. Yes, I'm audible. Sir, sorry, sir. I was disconnected. Can you please repeat what you said earlier? In last lab, we discussed about 9th assignment. Am I right or wrong? Yes, Yes, sir. sir. Anna, good. So I have uploaded the lab assignment on lab portal, right? So now all of you can upload the assignment, right, over there. Is it clear? Yes, Okay, sir. Yes, sir. So roll number 71 is there. 71 is there. Yashraj Singh is there. Yes, sir. Yashraj Singh is there. Thanks, sir. नहीं है, मैं उसको रिमूव कर दिया हूँ फिर क्लास से. यस, आप लोग के पोर्टल पे दिखाई दे रहे हैं 7th असाइनमेंट, Yes, sir. 9th असाइनमेंट तक. Yes, सर Yes, sir. sir. 6, 7, 8, 9 4 असाइनमेंट दिख रहा है. 4 असाइनमेंट दिख रहा है बस. 1, 2, 3, 4 दिख रहा है सर. नहीं बेटे, रिफ्रेश करो. नहीं, sir, आया है मतलब 5 सबमिट कर चुके हैं ना. हाँ वही तो कह रहा हूँ कि मतलब 5 सबमिटेड है, 4 सबमिट करना है. 4 कौन कौन से? 6, 7, 8, 9. हाँ, 6, 7, 8, 9, राइट. तो ये 6, 7, 8, 9 को आप लोग आज कर दीजिए, क्योंकि Yes, 8 तक sir. तो हमारा हो ही गया है ना? यस सर. तो 8 तक हो गया, 9th अभी आप कर रहे हो, राइट? हम्म। तो 9th में कहीं कोई दिक्कत आई 9th असाइनमेंट में? Yes, is anybody is having any problem in 9th assignment? सर ये 4th क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट कर्सर वाला, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है. अच्छा, एक्सप्लिसिट कर्सर वाला, ठीक है. तो रुको, मैं कर्सर वाला भी बता देता हूँ फिर से. कर्सर का मैं बता देता हूँ, है ना? 4 तक कोई दिक्कत किसी को? नो Yes. सर. 4 तक नहीं है. गुड, वेरी गुड. जस्ट वेट बेटा. Hello, sir. I am present today. 71. Yes, sir. How many assignment you have submitted? सर 5 तक सबमिट हुआ था, 6 वाले से तो आज देखा है तो फिर करेंगे. नहीं, roll number 71. ओह, Yes, 71. Yes, sir. How many assignment आपने submit करे हैं? Sir, sir, in the starting, maybe I have submitted 1 or 2 assignments. In the starting, maybe I have submitted 1 or 2 assignments. Not maybe. You have to be sure. How many? Sir, I'm not sure. Huh? Sir, I'm not sure. Not sure. Okay. तो बेटा मैं श्योर कर दे रहा हूँ, आपने अभी तक रोल नंबर 71 ना? Yes, sir. आपने अभी तक एक भी सबमिट नहीं करा है, तो देन थिंक अबाउट योर सिचुएशन. Till now you have not submitted any assignment on the portal. I don't know how many of the assignment you have completed right now. क्या था फर्स्ट असाइनमेंट में? तो उसमें तो टेबल क्रिएट हुई थी और सिंपल से टास्क थे. नहीं क्या? मेरी बेटा किसी से बात हो रही है, मैं उससे बात कर रहा हूँ. सॉरी सर, गड़बड़ लगता है ये. है ना? चलिए, तो कर्सर, यस, हम यहाँ से शुरू
See, before start of this topic, first we should know the simpler analogy or example. Ke, what is the purpose of cursor, right? See what happened in SQL. What you did over there, you simple fire the query over there, and through the query you can get the solution. ये चीज आप SQL में simple कर रहे हैं. In PLSQL, what you can do? In PLSQL, you can write a command, a block of code, and through that block of code, you can fire or you can write the query to perform a task. Like for example, the one task we have discussed over there, ki radius wala, area of circle wala, जो example हमने discuss करा था, right? In cursor, what happened? In cursor, you can fix a line or in a on a result you can fire the query. On a result you can fire the query. What does it mean? Or you can fix a cursor on a result or on a table. What does it mean? Does it mean that, like suppose you have an employee table, and in this employee table there are number of record over there, right? And you want to display the, suppose for example, third highest salary of the employees. Third highest salary of the employees. Yeah, you want to fire the query on that particular table where the salary is in ascending order. In that case, first you have to make a salary in ascending order. Then after you can fire the query over there. In this situation, you can use this cursor, right? So Oracle create a memory area known as context area for processing an SQL statement, which contain all information needed for processing the statement. For example, number of rows processed, etc. A cursor is a pointer to this context area. Means आपका जो टेबल है, जो आपका रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट में एक कर्सर एरिया फिक्स कर देता है. उस एरिया पे you can fire the query, right? Hello? Hello? Okay, dear. Okay, dear. Thank you. So which contain all information needed for processing the statement. For example, number of rows. A cursor is a pointer to this context area. PLSQL control the context area through a cursor. The cursor hold the row one or more, returned by a SQL statement. The set of rows the cursor hold is referred to as active set. The set of rows means जो मैं अभी आपसे बात करूंगी, जो आप पे रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट पे आप कोई क्वेरी फायर कर रहे हो, then that is called an active state. You can name a cursor so that जो आप कर्सर बनाओगे, create cursor, ask cursor name करके, वो आप cursor name बनाओगे. You can name a cursor so that it could be referred to in a program to fetch and process the row written by SQL statement. Fetch and process the row written by SQL statement. SQL statement से return the row means ascending order में आपने कर दिया सारा रिकॉर्ड. तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को आप एज अ कर्सर बना दिए, फिर आप उस पर कोई क्वेरी फायर कर सकते हो. तो इसको अभी हम बात करेंगे one at a time. There are two type of cursor. The one is the implicit cursor and the second one is the explicit cursor. अब implicit cursor क्या होता है? Implicit cursor are automatically created by Oracle whenever an SQL statement is executed. When you execute an SQL statement, then it will automatically create it. When there is no explicit cursor for the statement, programmers cannot control the implicit cursor and the information in it. So whenever a DML statement, DML means data manipulation, insert, update or delete is used, an implicit cursor
is associated with this state. But because it is automatically generated, and whenever you do a manipulation with the existing database, then that will be automatic generated. For insert operation, the cursor hold the data that need to be inserted. For update and delete operation, the cursor identifies the row that would be affected. In PLSQL, you can refer to the most recent implicit cursor as the SQL cursor, which always has the attributes like, now अब क्या है, अभी हम आगे बात करेंगे, हम आगे %found, %is open, %not found, %row count, ये सारे attributes discuss करेंगे, ये सारे attributes use करेंगे. Now the question arises, what is the purpose of these attributes? Why we, at this moment of time, %found means you are going to search any. Yes. Yes. सर आपकी वॉइस Yes. लैग हो रही है. Yes, I'm audible. यस सर. हाँ बेटे, अब क्लियर है? यस सर. क्लियर है ना? तो आपका %found, %is open, %not found, %row count, तो इनका जैसा मीनिंग है as it is इनका यूज भी है, जो अभी हम आगे जब प्रोग्राम कर्सर का डिस्कस करेंगे वहां पे हम बात कर लेंगे. राइट. अब ये देखिए, ये इनके क्या है कि %found return true if an insert, update or delete statement affected one or more row, or a select into statement return one or more row, otherwise it is return false. Not found, ये सारे ये हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा. सेम इनका जैसा is open कि if cursor is open, हेलो. कितनी रो आ रही है, उन रो को काउंट करने के लिए यू कैन यूज दिस. अरे बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी. तो Yes, फिर sir. से नहीं आ रही अभी वॉइस. भी हेलो. हेलो. हाँ, अभी सर है कहाँ? ये होस्ट कौन है? आदर्श है. मिश्रा. अच्छा, आदर्श है. अरे स्क्रीन शेयर करो आदर्श. स्टार्ट करो पढ़ाना, तुम ही पढ़ाओ. सर को मीटिंग से निकाल तो नहीं दिया? सर डिस्कनेक्ट हो गए. अच्छा. कर्सर बता रहे थे, कर्सर बीच में ही अटक गया. हाँ, सर का नेट लैग कर रहा है बार बार. हाँ, काफी लैग कर रहा है. हेलो आदर्श. अरे आदर्श भैया लेक्चर नहीं से नहीं ज्यादा लैब नहीं लग रही है इस बार. अभी म्यूट करके सो रहा होगा. ये भी लगना. थोड़ा सा
म्यूट नहीं किया है उसने, माइक उसका ऑन है, इनेबल है बट वो पता नहीं कहाँ। तो अनम्यूट करके सो गया होगा। हाँ सर, म्यूट वाले को बाहर निकाल देते हैं ना। आ गए। यस यस सर। यस सर। एक्चुअली वही होता है कि जस्ट वेट बेटा। आप लोग को स्लाइड ये दिख रही है, क्या नाम है, पीपीटी? नो सर। नो सर। अब यस सर। यस, हाँ, विल यू एबल टू सी दिस? यस सर। है ना? अब देखिए, अब आपका ये देखिए, एक मैंने सिंपल कर्सर प्रोग्राम लिखा है। तो ये आपको क्या कर रहा है कि ये समझ में आ रहा है आप लोग को लिखा हुआ? यस सर, थोड़ा थोड़ा सर आ रहे हैं। हाँ, आ रहा है ना? देखिए, यस सर। ये डिक्लेयर है। डिक्लेयर से पहले कर्सर, कर्सर नेम और एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये होता है कर्सर, कर्सर का क्रिएशन। कर्सर, कर्सर नेम, कर्सर नेम हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एस कर्सर लिख दिया। इज सेलेक्ट एस नेम कॉमा जीपीए फ्रॉम स्टूडेंट। अब मेरी एक स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल में मैं क्या कर रहा हूँ, उस स्टूडेंट टेबल में मैं एस नेम और जीपीए एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर रहा हूँ, उन पे कर्सर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कर्सर, कर्सर नेम इज सेलेक्ट एस नेम कॉमा जीपीए फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमने कर दिया, ठीक है। वी नेम हमने क्या करा, वी नेम हमने, जस्ट वेट बेटा, वी नेम हमने क्या करा कि हमारी एक टेबल है, हमारी एक स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल है। इस स्टूडेंट टेबल में बहुत सारी फील्ड्स हैं। उन फील्ड्स में हमारा क्या है, उन फील्ड्स में हमारा एक एस नेम और जीपीए, ये भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? उन एट्रीब्यूट्स पे हम एक कर्सर बना रहे हैं, एस कर्सर, ठीक है साहब। अब हमने क्या करा, एक वेरिएबल हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, वी नेम, वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वी नेम। अब ये जो लाइन है, स्टूडेंट डॉट एस नेम परसेंट टाइप, इसका देखो क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट टेबल में जो एस नेम एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट टेबल में जो एस नेम एट्रीब्यूट है, the data type of that sname attribute, the data type of that sname attribute is same as the data type of vname. Is it clear, the purpose of this line to all? Yes, yes, I am audible. सर ये vname क्या है? नहीं समझ में आ रहा सर। अच्छा, vname क्या है? vname हम एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। अब vname की जगह हम देखो, हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे, हम यहाँ पे लिख सकते थे vname
मींस सर vname जो है student.sname का जो भी डेटा टाइप लिख सकते होगा थे VName, यस वही होगा। हाँ अब है क्या, अगर sname का डेटा टाइप 10 है या sname का डेटा टाइप 20 है तो कई बार ये कंट्रडिक्शन क्रिएट करता है। तो अब ये जो लाइन लिखी है student.sname परसेंट टाइप, स्टूडेंट में sname का जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप सेम एज डेटा टाइप ऑफ vname हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस Yes, sir. right? Now the second variable we have chosen over here is VGPA another variable। अब VGPA का क्या है, स्टूडेंट में जो जीपीए का डेटा टाइप है, स्टूडेंट में जो जीपीए का डेटा टाइप है, पहले से हमारी स्टूडेंट टेबल क्रिएटेड है जिसपे हम ये कर्सर क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट में जो जीपीए का डेटा टाइप है वो जीपीए का डेटा टाइप यहाँ पे आ गया। ये बात क्लियर हो गई? यस Yes, sir. राइट। अब देखिए अब क्या हुआ, बिगिन। तो हमारा शुरू से हमने बात करी थी कि हमारे किसी भी एसक्यूएल उसका प्रोग्राम का एक डिक्लेयर होता है और फिर बिगिन होता है। अब क्या है, कर्सर is creating in declaration section now in begin open as cursor। अब ये open as cursor क्या है? open as cursor means you just open that particular cursor, you just open that particular cursor। मतलब क्या हो गया, जो कर्सर आपने your voice- था, जो बनाया था एस कर्सर बनाया था उस सर वॉइस नहीं सही आ रही आपकी। यस आई एम ऑडिबल। नो यस सर। No, आवाज आ sir. रही है मेरी? नो। यस सही से नहीं आ रही सर। सर आ रही है आपकी वॉइस, आ रही है, शिवांशी को नहीं आ रही है। यस बच्चों, यस बच्चों, यस बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? हाँ जी सर आ रही है। नहीं रही है सर। बेटा तुम्हारी तो बड़ी क्लियर आ रही है, मेरी क्यों नहीं आ रही फिर? बीच सर, बीच आ में रही है। दिक्कत कर जाती है, हैं? बीच बीच में दिक्कत कर जाती है। इस बार शिवांशी की प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, आपकी सही आ रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, अब आ रही है? यस सर। नेट की कुछ प्रॉब्लम है। चलो तो ये जीपी अब क्या, ओपन एस कर्सर। अब कर्सर ओपन कर रहे हैं, कर्सर ओपन करने में मींस हमने जो कर्सर यहाँ पे क्रिएट करा था, अब वो कर्सर क्या क्रिएट करा था, वी हैव सेलेक्ट एस नेम कॉमा जीपीए फ्रॉम स्टूडेंट, वी जस्ट ओपन दैट कर्सर नाउ फैच। अब लूप लगा दिया भाई, कोई भी जैसे लूप सिंपल लाइक दिस वन जो आपका सी लैंग्वेज में था, तो ओपनिंग ब्रेसेस हो गया, लूप लग गया। लूप किसके लिए, ओपन कर्सर के बाद। अब इसमें सारी चीज चलेगी। ये क्या है, फैच। फैच क्या, एस कर्सर, फैच एस कर्सर। एस कर्सर मींस एस कर्सर की जो वैल्यूज है। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एस कर्सर? द वैल्यूज ऑफ एस कर्सर इज एस नेम एंड जीपीए, एस नेम एंड जीपीए। अब फैच एस नेम एंड जीपीए इनटू व्हाट, vname एंड vgpa। अब ये vname और vgpa क्या है, ये vname और vgpa है जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन करे। हमने यहाँ पे वेरिएबल क्या डिफाइन करे, हमने vname और vgpa करे। अब देखो होगा क्या, उस कर्सर में से s नेम की वैल्यू डायरेक्टली हमारी vname में आ जाएगी और gpa की वैल्यू हमारी डायरेक्टली vgpa में आ जाएगी। इज दिस क्लियर टू ऑल? यस आई एम ऑडिबल, है ना? ओके गुड, थैंक यू। अब ये देखिए क्या है, dbms underscore output dot put underscore line। ठीक है साहब, स्टूडेंट vname, स्टूडेंट vname क्या है, यहां से नाम आ जाएगा, gpa नेम आ जाएगा जीपीए का, एग्जिट। अब ये क्या है, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, लूप में है। अभी एग्जिट कब होगा, एग्जिट व्हेन होगा, व्हेन कर्सर परसेंट फाउंड परसेंट नॉट फाउंड। मतलब तब तक चलता रहेगा जब तक कर्सर में कोई भी वैल्यू ना मिले। मतलब सारी डिस्प्ले हो जाएंगी जितने भी, अगर उसमें आपके 7 और 8 रिकॉर्ड्स हैं, देन द 7 और 8 रिकॉर्ड्स विल बी डिस्प्लेड ओवर देयर, राइट? एंड लूप, क्लोज एस कर्सर और एंड। ये एक सिंपल प्रोग्राम है वेयर व्हाट यू डिड ओवर देयर, यू सिंपल सेलेक्ट द एस नेम एंड जीपीए फ्रॉम द टेबल एंड हाउ द वैल्यू ऑफ एस नेम और जीपीए stored in this vname और vga। ये सिंपल एक प्रोग्राम है छोटा सा। नेक्स्ट देखिए हम जो कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है,
नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम ये आ रहा है कि यस, आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी बस लैग कर जाती है। अब ये जो स्टूडेंट टेबल है, इस स्टूडेंट टेबल में वही जो सेम स्टूडेंट टेबल हमारी चल रही थी, उस स्टूडेंट टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें से एट्रीब्यूट्स हमारा है, एक एस नेम है, जीपीए है और एसआईडी है। ये एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? अब हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जिनका जीपीए ग्रेटर देन 3.7 है, 3.7, the student who are having GPA greater than 3.7, right? Then उनका जो ग्रेड है, वो ग्रेड क्या कर दो, वो ग्रेड A लिख दो। Set grade is equal to A, and the student who are having GPA less than 3.7, उनका ग्रेड B लिख दो। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस, यस सर। है ना? अब देखिए, अभी तक जो भी आप ऐसा करते थे वो क्या था कि सिर्फ डिस्प्ले होकर आपके सामने आता था, डेटाबेस में कोई भी चीज नहीं होती थी। हम क्या चाह रहे हैं, नहीं, मेरी टेबल है, उस टेबल में द स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग मोर देन 3.7 जीपीए, देयर ग्रेड इज ए, एंड द स्टूडेंट हु आर स्कोरिंग लेस देन 3.7 जीपीए, द ग्रेड असाइन बी। ये टेबल में हो जाए। अब ये टेबल में हो जाए तो इसके लिए क्या है, इन दैट केस व्हाट यू कैन यूज द कर्सर ओवर हियर, राइट? अब देखिए क्या है कर्सर में, कर्सर ये इसमें डिक्लेयर ऊपर मिस कर गया है। यस, ऊपर डिक्लेयर नहीं है, यहाँ पे डिक्लेयर कर लीजिएगा, राइट? डिक्लेयर। अब देखिए कर्सर नेम इस सेलेक्ट क्या, ये स्पेस है, SID, SNAME, GPA। इस टेबल से SID, SNAME और GPA इसने सेलेक्ट कर लिया फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये जो कर्सर क्रिएट करा जा रहा है, इज एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस? यस, नो सर। okay, good. No, sir. Now what happened, the three variable is assigned over here, vname, vgpa, vsid। vname में name ले आए, vgpa में gpa ले आए, vsid में sid ले आए। Is there any problem to anybody in these three lines? Yes? नो सर। Good, thank you. Begin. अब क्या है begin क्या, open cursor क्या, जो वैल्यूज आप उस कर्सर में लाए हो। अब वो वैल्यूज आप उस कर्सर में क्या लाए हो, वो वैल्यूज आप उस कर्सर में वो लाए हो जो आपकी SID, SNAME और GPA की वैल्यूज थी, ले आए साहब, ठीक है। लूप, अब क्या है, फैच। अब देखिए, लाने के बाद क्या है, वैल्यू फैच करनी पड़ेगी। फैच किस में करनी पड़ेगी, इन एट्रीब्यूट्स में। किस एट्रीब्यूट्स में, दैट एट्रीब्यूट्स दोज आर डिक्लेयरिंग इन द कर्सर। वो देखिए कर्सर में आपके एट्रीब्यूट्स क्या है, vname, vgpa, क्या है, fetch s cursor into vsid, vname and vgpa। Is there anybody is having any problem up to सर this ये line लूप वन in the टाइम whole चलेगा class? क्या? लूप वन टाइम चलेगा मतलब सर ये लूप जो स्टार्ट हुआ है कितनी टाइम तक रन करेगा? ये लूप तब तक रन करेगा जब तक ये देखो, exit when s cursor not found, no value found in the cursor, ओके। right? Is it clear? Sure? श्योर सर। Good. Loop, अब क्या है, fetch s cursor into क्या, into the variable which you declared over there। इनमें वैल्यू आ जाए। अब यहां से ये सारी वैल्यूज, ये यहाँ, SNAME यहाँ और GPA, VGPA यहाँ, वैल्यूज आ जाएंगी। इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू दिस लाइन टू एनीबॉडी? यस? नो सर। नो सर। इफ, अब क्या है, VGPA में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज किसकी, GPA की वैल्यूज आ गई, ठीक है साहब। इफ VGPA greater than 3.7, VGPA greater than 3.7, then क्या, अपडेट। अब देखिए, ये पूरा जो कमांड है, ये पूरा कमांड आपका कहां जा रहा है, ये पूरा कमांड आपकी टेबल पे जा रहा है। ये पूरा कमांड ये आपके कहां, टेबल पे जा रहा है। अब टेबल पे क्या जा रहा है, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इज इक्वल टू A, where SID is equal to VID।
जिन एसआईडी और वीआईडी का जीपीए ग्रेटर देन 3.7 है उसमें चेंज कर दे। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? यस यस Yes, sir. एल्स अपडेट सेट बी, भाई जिसका नहीं है उसका सेट बी कर दे वीएसआईडी ये। एंड इफ एंड हो गया, ठीक है सब। एग्जिट व्हेन एस कर्सर परसेंट नॉट फाउंड। एग्जिट कब होगा? जब कर्सर को कोई भी वैल्यू उसमें ना मिले, वन बाय वन सारी वैल्यूज एग्जीक्यूट हो जाए, चेक हो जाए। एंड लूप, ये जो लूप आपका ये ओपन था, ये लूप आपका यहाँ पे एंड हो गया, एंड लूप। कर्सर क्लोज, क्लोज एस कर्सर एंड सेमीकोलन, एंड सेमीकोलन। अब आप जब इसको रन करोगे तो आपका जो टेबल है उस टेबल में ये सारी चीजें हो जाएंगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। Yes, sir. अब सिमिलर टू दिस वन ये देखिए, एक और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये क्या है? ये भी एक आपका जो असाइनमेंट है, एक्चुअली क्या है, ये तीनों प्रोग्राम आपके वही हैं जो आपके असाइनमेंट में है। मेरे ख्याल से ये 5th 6th 7th होगा। 9th असाइनमेंट में ये 5th है शायद, ये 6th है, ये 7th है। तो ये है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट इनके ले लीजिए। राइट, तो अब इन पे बेस्ड आप थ्योरी पढ़ लेना, उसमें 9th असाइनमेंट में है, उस पे बेस्ड आप क्वेरी करना, और अगर फर्दर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे फिर उसको पूछ लेना। तो ये स्लाइड में क्या, क्लोजिंग कर्सर के लिए क्लोज है, फैच वैल्यू के लिए इनटू CND ये है, ये सारी चीज ओपन कर्सर के लिए C_कस्टमर है, ये चीज सारी इसमें स्लाइड में है। राइट, इज इट क्लियर? यस सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ हाँ, सर ये प्रैक्टिकल एग्जाम सर किस तरीके से होगा लैब का? अभी बेटा कुछ ऐसा वो नहीं है, पर हाँ आप अपनी प्रिपरेशन पूरी फुल रखिए। ऐसे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूं कि हाँ बेटा, रोल नंबर 1 यू हैव टू परफॉर्म दीज 2 टास्क, जिसमें आपको मैं एक लैब का 2 लैब की क्वेरी दे दूं, एक PL/SQL ब्लॉक ऑफ कोड दे दूं। राइट, आपको बेटर 2 आवर आपके पास है, इनके सॉल्यूशन करके आप बैठिए। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, दूसरी फैकल्टी मेंबर वाइवा ले सकती है, सेम ऐसे उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपके एग्जाम क्लास में यहाँ होते हैं। राइट, ओके सर। बट अभी देखते हैं क्या चीज होती है डिसाइड। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम के लिए परेशान मत हो, अब जब तैयारी कर रहे हो तो जैसे जिसको एग्जाम लेना है ले लो, हमारी तैयारी पूरी है, तो अपनी Yes, sir. तैयारी अपनी तरफ से पूरी रखो। राइट, यस सर। है ना? एंड एवरीबॉडी मेक श्योर दैट till today evening everybody must upload the lab assignment number up to 8, जितने भी हैं वो सब हो जाने चाहिए आज, क्योंकि 8 तक हम पहले ही कर चुके हैं। नहीं, 8th में इंडेक्स वाला भी नहीं हुआ है ना, क्लास में भी इंडेक्स नहीं हुआ है ना? नो सर। हाँ, तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट उसमें 8th को बता दूंगा नेक्स्ट लैब में। आजकल में जब भी लैब होगी, आज तो हुई, नेक्स्ट में मैं इंडेक्स पढ़ा के खत्म कर दूंगा। राइट, तो 7th और ये 9th हो जाएगा। ये असाइनमेंट आज शाम तक अपलोड कर दीजिए सब लोग। इज इट क्लियर टू ऑल? यस यस सर, और आपने डेट जो दिया है सर? डेट तो मैंने, डेट पे क्यों जा रहे हो, डेट तो बाद की है, आप आज अपलोड कर दो। यस सर, वो तो कर दूंगा। हाँ, मैंने वो डेट तो मैंने ऐसे ही 6th 7th कर दी थी, 6th कर दी है, तो डेट पे क्यों जा रहे हो, आप अपलोड करो ना। आपके तो ऑलरेडी, मतलब मैंने लेट अपनी तरफ से आपको अपलोड करा है, तो आप आज कर यस दो। सर, राइट, शाम तक मैं सर चारों कर दूंगा। हाँ हाँ, सब लोग। राइट, इज इट क्लियर? यस, रोल नंबर 71 इज देयर, भाग गया। Yes, sir, present. प्रेजेंट, चलो करो, ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।